ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 1 वर्स 3। नैमिषे निम्नक्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्गालोकाय सहस्र समामासत। नैमिषे निम्नक्षेत्रे श्रेयसा शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समामस्तत। नैमिषे निमिक्षेत्रे श्रेयसा शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सम्मासत। वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। नैमिषे इन द फॉरेस्ट नोन एज नैमिषारण्य। Animisec Kshetre, the spot which is especially a favorite of Vishnu, who does not close his eyelids. Rasya sages. Sonak Adya, headed by a great Sonak. Satram, sacrifice. Swargaya, the Lord who is glorified in heaven. Lokaya, and for the devotees who are always in touch with the Lord. Sahasra, 1000. Samam, years. Asta, performed. Translation. Once in a holy place in the forest of Naimisaranya, great sages headed by the sage Sonak assembled to perform a great 1000-year sacrifice for the satisfaction of the Lord and his devotees. Purport. The prelude of the Srimad Bhagavatam was spoken in the previous 3 slokas. Now the main topic of this great literature is being presented. Srimad Bhagavatam, after its first recitation by Srila Sukadeva Goswami, was repeated for the second time at Naimisaranya. In the Vaivya Tantra, it is said that Brahma, the engineer of this particular universe, contemplated a great wheel which could enclose the universe. The hub of this great circle was fixed at a particular place known as Naimisaranya. Similarly, there is another reference to the forest of Naimisaranya. In the Varaha Puran, where it is stated by performance of sacrifice at this place, the strength of demonic people is curtailed. Thus, Brahmana prefer Naimisaranya for such sacrificial performances. The devotees of the Lord Vishnu offer all kinds of sacrifice for his pleasure. The devotees are always attached to the service of the Lord, whereas fallen souls are attached to the pleasure of material existence. In Bhagavad Gita, it is said that anything performed in the material world for any reason other than the pleasure of Lord Vishnu causes further bondage for the performer. It is enjoined, therefore, that all acts must be performed sacrificially for the satisfaction of Vishnu and his devotees. This will bring everyone peace and prosperity. The great sages are always anxious to do good to the people in general, and as such as the sages headed by Sonak and others assembled at this holy place of Naimisaranya with the program of performing a great and continuous chain of sacrificial ceremonies. Forgetful men do not know the right path for peace and prosperity. However, the sages know it well, and therefore, for the good of all men, they are always anxious to perform acts which may bring about peace in the world. They are sincere friends to all living entities, and at the risk of great personal and inconvenience, they are always engaged in the service of the Lord for the good of all people. Lord Vishnu, just like a great tree and all other, including demigods, man, siddhas, charnas, vidyandhara, and other living entities, are like branches, twigs, and leaves of that tree. By pouring water on the root of the tree, all the parts of the tree are automatically nourished. Only those branches and leaves which are detached cannot be so satisfied. Detached branches and leaves dry up gradually despite all watering attempts. Similarly, human society, when it is detached from the personality of God, like detached branches capable of being watered, and one attempted to do so is simply wasting its energy and resources. The modern materialistic society is detached from its relation to the Supreme Lord, and all its plans which are being made by atheistic leaders are sure to be baffled at every step, yet they do not wake up to this. In this age, the congregational chanting of the holy name of the Lord is the prescribed method for waking up. The ways and means are most scientifically presented by Lord Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, and intelligent persons may take advantage of these teachings in order to bring about real peace and prosperity. Srimad Bhagavatam is also presented for the same purpose, and this will be explained more especially later in the text. ओम ज्ञानत्रिमिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवां च
श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नाम नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश हरे कृष्ण। तो इस भागवतम का जो श्लोक है, फोर्थ श्लोक है चैप्टर नंबर 1 का, तो इसमें हम देखते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी एक्चुअली जो चीजें बताई जा रही है कि जो पहली बार जो भागवतम का रिसाइटेशन किया था वो सुखदेव गोस्वामी जी ने किया था, किनको, परीक्षित महाराज को, और बाकी सारे जितने भी सेजेस थे आके वहां पे यमुना नदी किनारे गंगा नदी किनारे आके 7 दिनों तक सुन रहे थे बैठ के। लेकिन सेकंड टाइम जब इसकी रिसाइटेशन हुई भागवतम को दोबारा, तो इस सौनक ऋषि ने किया, मतलब इस सूत गोस्वामी जी के द्वारा इसका रिसाइटेशन किया गया। तो इसमें देखते हैं जैसे कि, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अगर जैसे लोग होते हैं कुछ, द प्रिल्यूड इन द Veda it is said that Brahma, the engineer of a particular universe, contemplated a great wheel which could enclose the universe. The hub of this great circle was fixed in a particular place known as नैमिषारण्य। तो पहली जो कथा की गई थी पहली, तो नैमिषारण्य में किया गया था। नैमिषारण्य में सेकंड टाइम किया गया था, ये है भी अयोध्या में पड़ता है, यूपी में पड़ता है। तो डिवोटी ऑफ द लॉर्ड the devotee of Lord Vishnu offer all kinds of sacrifice for his pleasure। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं, तो जितने भी कर्तव्य करते, जितने भी कार्य करते, प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते हैं, सिर्फ भगवान की सेटिस्फैक्शन के लिए और उन्हीं के प्रसन्नता के लिए करते हैं। लेकिन जो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति होता है किसके लिए करता है, वो अपने लिए सिर्फ करने का प्रयास करता है। तो हम देखते हैं भौतिक समाज के अंदर लोग अपने में ही सिर्फ लगे पड़े हैं, लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। The great sages are always anxious to do good to the people in general, and such as the sages headed by Sonak and enters assembled at a holy place of Namisaram। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, वो दूसरों का भला करने का सोचते हैं, ना कि अपना, है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हरि कथा होती है, जो कथा होता है सब भक्तों के द्वारा, तो किस लिए होता है, उनके प्यूरिफिकेशन के लिए नहीं होता, वो हमारे शुद्धता के लिए, हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए होता है, हमारी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन आ सके, कुछ हमारे लाइफ ठीक ठाक हो सके, उसके लिए होता है। तो जो ग्रेट सेजेस होते हैं वो सेक्रीफाइस, यज्ञ, हमेशा यज्ञ करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं, क्योंकि इससे समाज का कल्याण होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी के टाइम पे जो कुछ डिसाइपल थे, तो उनके जहाँ पे मतलब टेम्पल था, तो वहाँ पे ना काफ़ी समय से ना बारिश नहीं होती, बरसात नहीं होती बिल्कुल भी। तो फिर शिष्यों ने कहा कि आज हम हरिनाम संकीर्तन करते, तो उन्होंने कंटिन्यू 2 दिन तक हरिनाम संकीर्तन किया। और लेकिन बाकी सब लोग कहने लगे, अरे कहाँ रेन वेन होगा, कुछ नहीं होने वाला, बारिश वारिश नहीं होने वाली। लेकिन 2 दिन के हर कंटिन्यूस हरिनाम संकीर्तन का रिजल्ट क्या आता है कि अचानक देखते हैं कि जो घटा है, बादल है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बारिश होने का बिल्कुल एक माहौल बन चुका है। तो फिर कुछ समय बाद बारिश होने लगी। तो ये किसका यज्ञ का एक्चुअली आता है, तो ये जो यज्ञ होता है हरिनाम संकीर्तन है। तो बाकी जितने भी युग थे उसमें अलग अलग तरह के दिए गए थे। जैसे सतयुग में दिया गया था ध्यान योग की पद्धति थी भगवान को प्राप्त करने के लिए, है ना। और त्रेता युग में था क्या, बड़े बड़े यज्ञ करते थे लोग, आहुति देते थे बड़े बड़े यज्ञ। अच्छा, और फिर जब द्वापर युग आया तो उसमें लोग बड़े बड़े भगवान के विग्रह बनाने लगे, बड़े बड़े टेम्पल कंस्ट्रक्शन होने लगे, ज्वेलरी देने लगे। लेकिन कलयुग में लोगों के पास ये भी नहीं, इतने गरीब है कि ये भी नहीं है लोगों के पास। तो क्या है, सिर्फ जो चैतन्य महाप्रभु है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने हमें क्या दिया, सिर्फ हरि नाम संकीर्तन सिर्फ दिया ओनली। और वही करके हम वो चीज अचीव कर लेंगे जो बाकी युगों में करना बहुत टफ है एक्चुअली। तो ये हमें दिया गया। तो हरि नाम संकीर्तन के द्वारा तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, और इससे प्रोस्पेरिटी तो आनी ही आनी है। They are sincere friends to all living entities, and at the risk of great personal inconveniences, they are always engaged in the service of the Lord। तो जो भगवान के जो भक्त होते हैं, अगर वो कोई सेवा कर रहे हैं जन कल्याण के लिए, तो अगर उनसे कोई उनको समस्या भी आ रही है, मतलब अगर उनको शरीर में कष्ट आ रहा है, मानसिक कष्ट आ रहा है, तो लेकिन उसको फिर भी ध्यान नहीं देता हूँ, सिर्फ लगे रहते हैं कि इससे जन कल्याण होगा अगर तो फायदा ही फायदा है। इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं बार बार जन कल्याण के लिए ही आते रहते हैं संसार के अंदर, है ना। तो जो लॉर्ड विष्णु जस्ट लाइक अ ग्रेट ट्री एंड ऑल अदर्स इंक्लूडिंग द डेमिगॉड्स। तो जो भगवान कृष्ण है, जो विष्णु है, नारायण है, वो एक बहुत बड़े ट्री है, बहुत बड़े पेड़ है, जिसमें पता नहीं क्या क्या, मतलब फल है, फूल है, पत्तियां है, उसमें टहनी है, टहनियाँ रखी हुई है ना, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर डेमिगॉड्स आ जाते हैं, है ना, किन्नर आ जाते हैं और गंधर्व आ जाते हैं, ये सारे कुछ आ जाते हैं। तो क्या अगर हम इन सब की वर्शिप करेंगे तो क्या भगवान विष्णु की प्राप्ति होगी?
तो जैसे इसका उदाहरण दिया गया इसके अंदर, जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, तो अगर पेड़ को अगर हमें अच्छा रखना है बिल्कुल ना, कि जो पेड़ है बिल्कुल समृद्ध रहे और अच्छे से मतलब फले फूले अच्छे फल वल दे, तो अगर हम उसके फलों में पानी देंगे, तनों में देंगे, या फिर पत्तियों में देंगे, या फिर ऐसे अगर करके देंगे, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि सारा पेड़ सेटिस्फाइड हो जाए? नहीं होगा ना पॉसिबल। हो सकता है टाइम पे पेड़ खराब हो जाए और पेड़ की जो आयु है और कम हो जाए, क्योंकि उसको एक जहाँ पे उसको वाटर मिलना था सप्लाई नहीं हुआ। तो ठीक अगर उसके हम जड़ में अगर पानी डालेंगे ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो जड़ में अगर पानी गया तो फिर जड़ के थ्रू सारा वाटर जहाँ जहाँ जिसको चाहिए होगा तो फिर ले लेंगे, फ्लोएम जाइलम इन सब के थ्रू, जिनको फूड की सप्लाई जितनी चाहिए होगी सब मिल जाएगी, और जो वाटर की सप्लाई भी मिल जाएगी प्रॉपर। ठीक उसी तरीके से अगर हम इतने सारे देवी देवता भी है, चलो ठीक है, और इतने सारे चीज़ें हैं और हमारे बहुत सारे इष्ट देव हैं, तो ये हो सकता है कि हम किस किस को प्रसन्न करेंगे। अगर एक को प्रसन्न करेंगे तो दूसरे नाराज होंगे, दूसरे करेंगे तो तीसरे नाराज होंगे, क्योंकि एक्चुअली हम उनकी अगर भक्ति भी करते हैं ना, तो हमारा मेन उद्देश्य पता क्या होता है कि उनसे हम भक्ति नहीं मांगते, हरि भक्ति हम नहीं मांगते, हम उनसे सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं कि हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी आए, समृद्धि आए, सुख समृद्धि आए, ये सब चीज़ मांगते हैं। तो ये मांगते हैं, फिर वो मिल जाता है, फिर कुछ समय बाद टेम्पररी बहुत ही समय का रूल ही है, दोबारा से ये चला जाता है, फिर दोबारा वर्शिप करने लगते हैं किसी और गॉड की। जैसे अभी कुछ समय पहले भी दुर्गा पूजा गया है ना, नवरात्र नहीं गए तो 9 दिन तक लोगों ने अच्छे से व्रत रखा, उसके बाद माँ को भूल गए, और उसके बाद अब कुछ किसी और चीज़ का वेट करेंगे। जैसे गणेश चतुर्थी आती है, मतलब जिस जिस इष्ट देव का जो भी आता है तो उस तरीके से लोग तैयारी करते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर हम उनसे हरि भक्ति मांगे और कंटिन्यूस और उनकी वर्शिप करें, तो वही हम एक दिन हरि के पास पहुंचा सकते हैं, हरि शुद्ध भक्ति दे सकते हैं। तो इससे बहुत भगवान खुद कहता है जो ये इनडायरेक्ट भगवान की भक्ति होगी, भक्ति है लेकिन इनडायरेक्ट है, एक एक अंक किया जाता है। इसलिए भगवान कहता है अगर कोई मेरी वर्शिप करता है सबसे इंटेलिजेंट बुद्धिमान व्यक्ति है जो भगवान की वर्शिप करता है। तो भगवान कृष्ण और वर्शिप करेंगे, विष्णु और वर्शिप हम करते हैं या आराधना करते हैं, भजन करते हैं उनका, तो सब कुछ सेटिस्फाइड है। जैसे हमें भूख लगी तो अगर पेट, अगर हमें भूख लगी तो अगर हाथ को खाना दे, पैर को खाना दे, दिमाग को खाना दे, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो अगर हम पेट में खाना डालेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि एक बार हाथ पैरों ने सोचा, शरीर के सारे अंगों ने सोचा कि मैं काम क्यों करूं। हाथ ने बोला मैं खाना डालता हूँ, पैर ने बोला मैं बाजार जाता हूँ लेने के लिए, और मुख ने बोला कि मैं तो अंदर डालता हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाला। आंखों ने बोला मैं देखता हूँ, नाकों ने बोला मैं अच्छे से सूंघता हूँ। हम कुछ नहीं करने वाले, और इस पेट का बहुत आराम है, इसमें खाना रहता है आराम से, बिल्कुल रहता है, इसे कुछ नहीं करना पड़ता है ना। तो कुछ समय बाद उन्होंने खाना नहीं लिया, फूड नहीं लिया, इंटेक नहीं किया, तो क्या हुआ? ऑटोमेटिक कुछ समय बाद शरीर बहुत कमजोर पड़ने लगा। हाँ, जो हाथ की उंगलियां बहुत कमजोर हो गई, पैरों से खड़ा नहीं हो जा रहा था, है ना, आंखों से कम दिखना बंद हो गया था, नाकों से सुगंध नहीं आ रही थी, मुंह से कुछ बोला नहीं आ रहा था। उन्हें बाद में रियलाइज हुआ अच्छा अच्छा क्या समस्या आ गई। तो जब फूड में जब डाला उन्होंने, जब फूड को स्टमक में डाला तो ऑटोमेटिक सारी चीज सेटिस्फाइड हो गई। सो दिस शुड बी आवर मोटो। द मॉडर्न materialistic society is detached from its relation to the Supreme Lord, and all its plans which are being made by atheistic leaders are sure to be befuddled at every step, yet they do not wake up to this। जो मॉडर्न जो सोसाइटी है, जो भौतिक समाज है, इनको कहा गया कि फूलिश है। क्यों है फूलिश? ये इसलिए है क्योंकि ये भगवान से इनका कोई रिश्ता नहीं है, रिलेशन इन्होंने भगवान से अपना रखा नहीं है। तो जब नहीं रखा है तो जो नास्तिक समाज के जो कुछ तथाकथित जो लीडर होते हैं, है ना, नास्तिक लीडर है, और कहते हैं कि आई एम एथिस्ट, मेरी बहुत प्राउडली कहते हो ये चीज़ को, तो उनसे कांटेक्ट रखते हैं। तो एट द एंड ऑफ लाइफ हम देखते हैं क्या कि उनकी जो प्लान है भगवान के अकॉर्डिंग तो है नहीं, तो प्लान उनके तो एवरी स्टेप पे खत्म होते रहते हैं। फिर भी ऐसे लोग समझते हैं कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, फिर भी कहता है कोई नहीं, होता रहता है, क्या दिक्कत है। सो वी शुड बी कॉन्शियस फ्रॉम सच पर्सन। In this age, the congregation chanting of holy name of Lord is the prescribed method for waking up. The ways and means are most scientifically presented by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Intelligent person may take advantage of the teachings in order to bring real peace and prosperity। तो इस जो कलयुग है इसमें सिर्फ शांति समृद्धि लाने का, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लाने का एक ही तरीका क्या? कांग्रीगेशनल चैंटिंग करना है, मतलब संकीर्तन करना, साथ में मिल के अगर हम चैंटिंग करें, हरे कृष्ण महामंत्र हम जब करते हैं, उच्चारण करते हैं उस स्वर में, तो फिर डेफिनेटली पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी और हमारा लाइफ सक्सेसफुल होगा, है ना। दैट शुड बी कंक्लूजन ऑफ भागवतम लेक्चर। हरे कृष्णा।